Hello children, how are you? I am Meenakshi Tripathi, Principal Government High School Osa Rai Bareilly, and today I will teach you the second poem of your course, The True Beauty by Thomas Carlyle. Children, before we start with the poem, let us know something about the poet Thomas Carlyle. Thomas Carlyle was an English poet. He was born in the year 1595 and died in the year 1640. His poems are sensuous lyrics, children. Sensuous means they appeal to our senses. And lyrics are the poems that express the personal feelings of the poet. Thomas Carlyle was a creative poet, children. He was greatly influenced by his fellow poets John Donne and Ben Jonson. Children, before I start with the poem, let me ask you a question. What is your idea of beauty? And my second question is, what qualities make a woman beautiful? Children, beauty is a word that can be defined in different ways because different people have different opinions about it. It is quite possible that some of you might be relating it with the physical appearance of a person. But children, you have to think about it. Because beauty is just not a superficial aspect. It is the inner self that makes us beautiful. How we look from outside is important, but now as important as our spiritual self, children. Real beauty lies inside. You have to see inside, and then you will find the real beauty, the beauty of your soul, the beauty of your thoughts, the beauty of your ideas. Children, you might be seeing many people all around you. And you must have in mind certain people who are not so attractive from outside. But when you think about them, you find them beautiful. Why? Not because they are physically attractive, but because their soul is beautiful, their thoughts are beautiful, their ideas are beautiful. That's why you call them beautiful. This is what Thomas Carlyle is also telling in this beautiful and small poem, children. He wants to tell us what does he think about the beauty. Children, before I start with the poem, let me recite the poem for you. It is a beautiful poem of 2 stanzas, children. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. This is really a beautiful poem, children, and the poet wants to tell you what he means by beauty. Now, we will explain the first stanza, children.
He that loves a rosy cheek or a coral lip admires. Children, the poet is describing the beauty of the face, the physical beauty. He is saying that a lover may be attracted by the beautiful face of his beloved. He may be attracted by the rosy complexion of his beloved. Or he may be attracted by the coral lips. Children, coral actually is a hard red or pink substance that forms in the sea from the bones of a very small sea animals. But here the poet has used it to tell us about the color of the lips that are red as coral. It is considered to be beautiful, children. So the poet is saying that the lover loves his beloved because she looks beautiful, because physically she looks attractive. She has cheeks red as rose. She has lips as red as coral. And that's why the lover loves his beloved. She is loved because of her physical beauty. The lover loves the star-like eyes of his beloved because the lady has eyes that are as sparkling, as shining as the stars. So children, the poet wants to tell that the love can be based on physical beauty, the beauty of the eyes, the beauty of the face, the beauty of the lips. But he has compared this love to fires, because this can be the mere infatuation. This can be the lust, children. The lover keeps the fire of his love alive by the beauty of his beloved. So this love is a conditional love, children, because it is based on the condition that the beloved is beautiful. She is having a beautiful face, red lips and eyes that are shining as star. And that is why the beloved is happy to see the beauty of his beloved, and that beauty is making his fire burn. This love is not the true love. This is a passion that the lover wants to satisfy, children. Children, here the poet wants to tell you that the love that is based on physical beauty is not the true love. It is just like the fire. It is the intense emotions and the passions that the lover is trying to satisfy. As all time makes these decay, so his flames must waste away. Children, what happens? A relationship that is founded on physical attraction or lust may not last for a long time, because it can be mere infatuation, children. So, all of you know that nobody can keep the beauty forever, because as the person grows old, the beauty also decays. Time slays everything, children. So, as the beloved becomes old, her beauty also diminishes with the passage of time. And as the beauty diminishes, the love that is based on that beauty also finishes. So, this cannot be the true love. So, the poet wants to tell you that as the time passes, the physical beauty decays and the love also
comes to an end. So how can this be the true love? True love never comes to an end because it is based on the beauty of the heart, the beauty of the spirit, and that is why it never comes to an end, children. Now, we come to the second stanza. The poet wants to tell you that but a smooth and steadfast mind, steadfast means loyal, faithful. Now the poet wants to tell you that true love that is based on the beauty of the heart, the beauty of the feelings and spirit never comes to an end. Beauty of mind and soul is really beautiful. So he wants to tell you that the beauty of mind and beauty of soul is the real beauty, where thoughts are gentle and the desires are calm. You must be remembering that in the first stanza he used the word fires, and here he is using the word calm desire. The desires are calm. This love is unconditional. This is not based on any condition. This is not infatuation. This is based on genuine and simple and honest feelings of the heart. And that is why it is true love, children. And in such conditions, hearts with equal love combined. The lovers each love each other truly, and this and such love kindle never dying fires. Never dying fires means this love never comes to an end because it is based on something that will never finish. The beauty of your spirit, the beauty of your soul will never diminish. So the love that is based on that spiritual beauty will never come to an end, children. So the poet is saying that smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires lead to real beauty, children. And the love that is based on this beauty is the real love because it is unconditional. It is based on the love of the spirit. Now, children, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. The poet is saying that where the love is not based on the genuine feelings of the heart, I hate, despise means I hate this type of love because this is not the true love. This is not the true beauty. The love that is not based on the true beauty of the heart or the soul of the spirit is not the true love. It cannot be the true love, children. He says that I despise, I hate physical beauty that is without virtues. So children, virtues are the most essential part of your life. Most of the people make efforts to make them physically beautiful, but put a little effort into their spiritual grooming. But children, according to the poet, spiritual grooming is most important because your spirit must be beautiful. Spirit means your thoughts. You must be compassionate, you must be honest, you must be kind, you must show understanding towards others, you must have sympathy for others. This is the real beauty of your heart.
You must have seen lots of people who are sympathetic, who are compassionate. Whenever we see them, we like them. We call them beautiful, not because they are physically attractive, but because their soul is beautiful. So children, try to groom your soul. Try to groom your inner self, because beauty lies somewhere beneath the skin. Beauty is a thing that is a joy forever. As Keats has said, a thing of beauty is a joy forever. So this can never be diminished. Love that is based on this spiritual beauty, the beauty of your soul, the beauty of the spirit, the beauty of the thoughts, can never come to an end, children. This is a beautiful poem, has a philosophical ideas that you must try to attain that spiritual beauty, and the love should also be based on that beauty. So the poet wants to tell you that you must take care of your inner beauty, and that will really reflect on your face, children. Now children, the main theme, as I told you, of the poem is that the poet wants to tell you that physical beauty is nothing in front of spiritual beauty. Now we can compare physical beauty to spiritual beauty. Physical beauty is momentary. Momentary means it is very short-lived, because today we are young, today we may look beautiful, but it is quite possible that tomorrow we are not so beautiful. The time decays everything, the time slays everything. So how can we maintain our beauty forever? So that is why physical beauty is very short-lived. It is momentary, but spiritual beauty is forever. The beauty of your soul will remain with you forever. Children, try to be compassionate, try to be loving, try to be sympathetic, and try to groom your inner self. You will see that you are really beautiful. Nobody becomes beautiful from the physique only. Maybe someone is physically beautiful, but his soul is not at all beautiful. So how can you call him or her good looking or beautiful unless he has a beautiful soul? So spiritual beauty is the beauty of the mind, as I'm telling you again and again. Spiritual beauty is the beauty of your thoughts. Your thoughts must be good. They must be pure. You must not have envy and jealousy for others. You must love everyone. Do something for others. Only then you can be really beautiful. But physical beauty is based on some external factors that diminish with the passage of time, children. So try to obtain this beauty, spiritual beauty, that is going to remain with you forever. Physical beauty without spiritual beauty is like an empty vessel. There are lots of people in this world who are physically very attractive, but we do not like them because they are devoid of real beauty. They are cunning, they are dishonest, they are full of hatred. We do not like them. So try to groom your inner self, because the inner beauty is within you, not outside, children. So you have to learn how to groom yourself from inner. So children, until we learn to spiritually groom ourselves, we will never be happy and beautiful in our lives, children. Spiritual beauty has a real impact on physical beauty of a person. As I am again and again telling you, children, that physical beauty is just
a superficial aspect. It is the inner self that makes a person really beautiful. So children, beauty lies inside your heart. Intellectual, spiritual and emotional qualities of your character make you really beautiful. So try to groom yourself from your spirit, children. Spiritual ugliness. What is spiritual ugliness? Your spirit is not pure. Your soul is not good. Your thinking is not good, children. It is impure. So what will we do with that physical beauty that is devoid of spiritual beauty? Spiritual ugliness also manifests itself in physical appearance. Maybe you are very beautiful. You look extremely good looking. But spiritually you are ugly. You are full of hatred. You envy others. You are jealous of others. How can you look beautiful? So if you want to look beautiful, you must try to be beautiful from inside. Try to make your soul, your spirit beautiful. Then only you can be called really beautiful, children. So children, focus on spiritual beauty and not only mere physical beauty, because physical beauty will decay with the passage of time, and that is what the poet also wants to tell you, that spiritual beauty is the real beauty. The beauty of the face, the beauty of the hair, the beauty of the eyes are the subject to decay. Everything will decay with the passage of time. But the spiritual beauty will never come to an end, children. So when your spirit is beautiful, it is full of kindness, full of love, compassion, understanding, you give, you share. You are really beautiful, children. And until we learn to be spiritually beautiful, we'll always be unhappy in our lives, children. Children, central idea of the poem. Central idea means what is the theme of the poem or what is the gist of the poem. Children, in this poem, the poet glorifies a spiritual beauty. It is a small poem, but it has a great message, children. The message is that physical beauty is very short-lived. So you must not focus on mere physical beauty, but should try to groom ourselves from inside. We must try to groom our spirit, our soul. Try to inculcate good habits, good ideas. You must be honest, you must be truthful. Only then you can develop a good relationship, children. If the relationship is based only on external factors like the beauty of the eyes, the beauty of the face, the beauty of the hair and the lips, this will not last for a long period, because physical beauty is the subject to decay, children. Physical beauty is very short-lived. It is momentary. It will diminish with the passage of time, children. So try to develop your spiritual beauty that will remain with you forever. True beauty lies in a smooth and firm mind, gentle thoughts and calm desires. As you read in the poem, the love that is based on mere physical beauty is as intense as fire. And when the fire will not get the fuel, it will go away. But the love
that is based on genuine and calm desires of the heart, it will be everlasting because it will be unconditional love. So try to develop spiritual beauty, and the love that is based on that spiritual beauty will never diminish. The love based on nobility of character remains permanent. It is permanent because it is based, it is founded on the beauty of the soul, on the beauty of the spirit, children. So try to make your spirit beautiful, try to make your heart beautiful, your thoughts and actions must be beautiful, and that is more important than mere physical beauty. Children, this is a beautiful poem, and the poet has also made use of poetical devices. Figure of speech metaphor is used in coral lips. The lips have been compared to coral. Coral means red, that is a red substance. As I told you, rosy cheeks. The cheeks are as red as rose. The comparison has been made. Then he has used simile in star-like eyes, the eyes that are as shiny as stars. The style is lucid and the message is clear. Really, it's a beautiful poem, children. And the poet has delivered his message very clearly. Children, I want all of you to read the poem very thoroughly and answer all the questions that I am giving you for homework. My first question is, read the poem properly and write its theme in your own words. You have to express your ideas in your own language, and you have to write down the theme of your poem in your own words. Now, my second question is, you have to explain the phrase, kindle never dying fires. The third one is, what is meant by fuel to maintain his fires? Now, the last one is, write your idea of true beauty. Again, this is extremely your own question where you have to express your ideas of beauty. You have to write, what do you think about beautiful? What qualities are needed to make a person beautiful? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिश्रा, GGIC कलाल खेड़िया आगरा से आप सबका स्वागत करती हूँ कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय में। त्रिकोणमिति सभी बच्चों के लिए एकदम नया विषय होगा, परंतु ये बहुत रोचक है। यदि इसके सिद्धांत समझ में आ जाएं, तो इसके सवाल करने में फिर बहुत मजा आता है। इस पाठ के मुख्य शिक्षण बिंदु रहेंगे, पहले हम त्रिकोणमिति का परिचय देंगे, फिर त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे, फिर कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे और अंत में त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। ग्रीक के ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन शब्द से मिलकर बना है। ट्रिग्नोन का मतलब है त्रिभुज और मेट्रॉन का मतलब है माप, यानी त्रिभुज की माप से संबंधित है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति
गणित की वह शाखा है जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। उस समय खगोलविद पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरी नापने में इसका प्रयोग किया करते थे। तो आइए पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। हम अगर अपने आसपास देखें तो आराम से हम समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। जैसे यदि हम किसी मीनार को देखना चाहते हैं तो मीनार जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जमीन से मीनार के बीच में हम मान सकते हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यदि हम मीनार के शीर्ष को देखें तो शीर्ष को नीचे बिंदु से मिला सकते हैं और इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज की रचना हो जाती है। तो आसपास ऐसे हम समकोण त्रिभुज की संरचना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में ही लगाया जा सकता है, इसी में निकाला जा सकता है। ये है क्या? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसमें त्रिभुज के साइज का इसीलिए कोई अंतर नहीं पड़ता है, पर हमें किस कोण के सापेक्ष निकालना है ये ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, जिसमें B कोण समकोण है। हमें कोण A के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनको हम साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान ले कि समकोण त्रिभुज में सब भुजाओं के क्या क्या नाम रखे जाएंगे। समकोण के जस्ट सामने वाली सबसे लंबी भुजा कहलाती है कर्ण। अब इन दोनों भुजाओं में से कोई भी लंब हो सकती है, कोई भी आधार। तो जिस कोण के सापेक्ष हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है उसके सामने वाली भुजा को हम लंब लिख देंगे और इस कोण से लगी हुई भुजा को हम आधार लिख देंगे। तो इस प्रकार अब त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण ये निश्चित हो गए। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। साइन A, इसका फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा। ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब इस समय है BC और कर्ण है AC, इसीलिए साइन A बराबर BC बटे AC हो गया। इसी तरह cos A होता है आधार बटे कर्ण। आधार AB है, कर्ण AC है, AB बटे AC। tan A लंब बटे आधार, इसको हम लिख सकते हैं BC बटे AB। अब साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। व्युत्क्रम का मतलब जस्ट उल्टा। अगर साइन ए लंब बटे कर्ण लिखा गया है तो कोसेक ए हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब, इसलिए इसका सूत्र आ गया, इसका उल्टा AC बटे BC। सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है और कॉट टैन का व्युत्क्रम होता है। तो इस प्रकार अगर त्रिभुज के हमें तीनों भुजाएं पता हो, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो, तो हम ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब अगर यही त्रिभुज है लेकिन हमें C के कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज यही है और हमें C के सापेक्ष निकालने को कहा गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो C के सामने इस समय भुजा हो गई AB, तो इस समय ये कहलाएगी लंब और ये कहलाएगा आधार और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाई कर्ण। तो अगर हम साइन C निकालेंगे तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएंगे। तो आइए इस पर एक प्रश्न करके इस चीज को हम समझते हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़े उसको मैंने बिल्कुल संक्षेप में यहाँ पे लिख दिया है, जहाँ L का मतलब है लंब, K का मतलब है कर्ण, A का मतलब है आधार। यानी लंब बटे कर्ण साइन हो गया, आधार बटे कर्ण कॉस हो गया, लंब बटे आधार टैन हो गया। इसको लोग शॉर्ट में याद रखते हैं लाल बटे कब का। अब इस पर एक प्रश्न है, समकोण त्रिभुज ABC में
कोण बी 90 डिग्री का है और tan A बराबर 1/√3, तो sin A cos C प्लस cos A sin C का मान बताएं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें tan A दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है यानी कोण A के सापेक्ष हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे, समकोण त्रिभुज की। कोण B 90 का दिया है तो कोण B यहाँ लिख लेंगे, A और C यहाँ लिख लिया। कोण A के सापेक्ष कहा है तो A के सामने ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो tan A बराबर 1/√3, लेकिन tan A अगर हम सूत्र से देखें तो क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार। अगर हम इसी के आगे ऐसे लिख लें, लंब बटे आधार, तो दोनों की तुलना करने पर आप पा रहे हैं कि लंब की जगह हम लिख सकते हैं 1 और आधार की जगह लिख सकते हैं हम √3। तो अब आप इस समकोण त्रिभुज को देखें। समकोण त्रिभुज में हमें लंब और आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। हम जानते हैं तीनों भुजाओं के बीच में संबंध पाइथागोरस थ्योरम से मिलता है, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण की लंबाई हमें निकालनी है, हम ये मान रख दें, लंब की जगह 1, आधार की जगह √3। सॉल्व करेंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा 2। इस तरह से हमारा इस त्रिभुज से हमने कर्ण निकाल लिया, लंब आधार हमें पहले ही पता था। तो अब हमें जिस चीज का मान निकालना है उसमें देखें तो sin A चाहिए और cos A चाहिए पहले। तो हम sin A का मान निकालते हैं। sin A के लिए सूत्र लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब है यहाँ पर 1, कर्ण है 2। cos A हम फॉर्मूला लिखेंगे, cos A के लिए जब लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण। आधार आपका है √3 और कर्ण है 2, sin A cos A। लेकिन अब cos C और sin C पूछा गया है। sin C और cos C के लिए त्रिभुज का लंब और आधार आपस में बदल जाएगा। तो अब हम cos C और sin C के मान के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, वही त्रिभुज, लेकिन अब कोण C के सापेक्ष हमें मान निकालना है। तो कोण C के सामने की भुजा कहलाएगी लंब और A के सामने की भुजा कहलाएगी आधार। हमें पहले से ही पता था, ये 2 था और ये 1 था और ये √3 था। उसी त्रिभुज में बस अब हमने C को मार्क कर लिया है। C को मार्क करने से अब हमारा लंब इधर हो जाएगा और आधार इधर हो जाएगा। तो जब हम cos C निकालेंगे तो cos C हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार इस समय है 1 और कर्ण है 2। और इधर देखिए sin C चाहिए हमें, तो sin C बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इस समय लंब है √3 और कर्ण है 2। तो अब हम सारे मान अलग अलग निकाल चुके हैं, sin A, cos C, sin C। जो चीज हमें निकालनी थी अब उसमें हम सब मान रख देंगे। sin A की जगह 1/2 गुणा cos C की जगह 1/2 प्लस cos A √3/2 sin C √3/2। सो 1/4 प्लस 3/4, इनका हम एलसीएम लेंगे तो हम लिख सकते हैं 4/4 या 1। अब हम लोग देखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान तो हमें याद करने पड़ते हैं। जैसे इस टेबल को देखिए, साइन इधर लिखे हैं, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, इधर कोणों के मान लिखे हुए हैं। यानी कि अगर कोई पूछता है साइन 0 का मान कितना है तो ये देख के हम बता देंगे 0, 0 होता है।
साइन 30 का मान कितना है 1/2, साइन 45 का मान कितना है 1/√2, साइन 60 का मान कितना है √3/2, साइन 90 का मान कितना है 1। अब कॉस का मान, कॉस 0, कॉस में साइन का जस्ट रिवर्स चलेगा, यानी कि 90 का जो है वो यहाँ लिख जाएगा, कॉस 30 होगा √3/2, कॉस 45 सेम 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। tan a हमेशा याद रखें साइन ए बटे कॉस ए होता है, यानी साइन के मान को कॉस के मान से भाग करते जाएं तो हमें tan का मान मिल जाएगा। पर वैसे हम लोग ये 3 मान याद रखते हैं इन कोणों के लिए, और अन्य तो इनके व्युत्क्रम होते हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो tan a हो गया 0/1 0, अपॉन करेंगे 1/√3 1√3 और अपरिभाषित। अब कोसेक है, साइन ए का जस्ट उल्टा चलेगा, यानी कोसेक 0 का मान होगा, देखिए 1/0 यानी कि अनंत या अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2, 2/√3 हो जाएगा इसका कोसेक 60 का, और कोसेक 90 पे 1। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो 1/1 यानी 1, 2/√3 √2 2 और 1/0 यानी कि फिर से अपरिभाषित या अनंत। कॉट ए किसका उल्टा है tan a का, तो 1/0 अनंत या अपरिभाषित, √3 1 1/√3 और 0। तो इस तरह इनके मान हमें याद होने चाहिए, फिर हम इस पर आधारित जैसे भी सवाल दिए होंगे उनके डायरेक्ट मान रख के हम निकाल लेंगे। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर एक हम सवाल लगाते हैं। सवाल दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान निकालें। तो हम लोग शुरू होते हैं। tan 45 का मान आप टेबल में देखें, tan 45 का मान होता है 1 और उसके ऊपर हमें स्क्वायर करना है। फिर cos 30 टेबल में देखें √3/2 इसका वर्ग करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। हम मान रख चुके हैं टेबल से, अब इसे सिर्फ सॉल्व करेंगे। 1 √3 का स्क्वायर हो गया 3 और नीचे हो गया 4, 3 4, हम देख रहे हैं 3 और 4 आपके कट गए और आंसर आ गया 2। आइए अब हम लोग देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाले जाते हैं। अगर हम किसी समकोण त्रिभुज को देखें, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है तो अन्य जो 2 कोण होंगे वो दोनों ही न्यून कोण होंगे। और पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण 2 कोणों का ऐसा युग्म जिनका योग 90 डिग्री हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं इन दोनों कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक 90 ऑलरेडी हो गया, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। हम लिख सकते हैं कोण A को प्लस कोण C इक्वल्स टू 90 डिग्री, या कोण C बराबर 90 माइनस कोण A, या अपनी सहूलियत के लिए हम लोग कोण का साइन हटा सकते हैं और डायरेक्ट लिख लेंगे C बराबर 90 माइनस A। तो अब अगर इस त्रिभुज के लिए हम लोग कोण A के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें, साइन A लिखें, तो क्या होगा? साइन A होता है लंब बटे कर्ण। जब A लिया है तब लंब होगा हमारा BC और कर्ण AC है, तो हम लिख सकते हैं साइन A बराबर BC बटे AC। ये हमारी पहली समीकरण हो गई मान लीजिए। और अब हम C के सापेक्ष cos निकालते हैं। cos C, जब C के सापेक्ष निकालेंगे तो इस C के लिए जब हम लिखेंगे तब लंब AB होगा, आधार BC होगा। तो cos C के फॉर्मूले में आता है आधार बटे कर्ण। आधार की जगह हमने लिखा BC, कर्ण की जगह लिखा AC।
अब जैसा कि हम देख चुके हैं, c को हम लिख सकते हैं 90 माइनस a। तो मैंने c की जगह लिख लिया 90 माइनस a। सो cos 90 माइनस a निकल के आया bc अपॉन ac। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब अगर आप समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड पे bc अपॉन ac इसमें भी है, bc अपॉन ac इसमें भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के हम बराबर कह सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस a इक्वल्स टू sin a। इसी तरह sin 90 माइनस a इक्वल्स टू cos a हम लिख सकते हैं। हम और त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए भी इसी तरह से सूत्र निकाल सकते हैं। इस प्रकार पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र हमें इस तरह से मिल जाते हैं। sin 90 माइनस a इक्वल्स टू cos a, और sin की जगह cos कर देते हैं। tan 90 माइनस a इक्वल्स टू cot a, इसी तरह cot 90 माइनस a इक्वल्स टू tan a, cosec 90 माइनस a इक्वल्स टू sec a, और यहाँ sec कर देंगे, उधर को sec कर देंगे। तो इस तरह की ये पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ये होते हैं। अब इस पर हमें ये प्रश्न मिला हुआ है, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 का मान निकालिए। तो अभी हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 48 में कौन सा कोण जुड़कर 90 डिग्री बना रहा है। तो जब 48 में 42 जुड़ेगा 42, यानी 48 और 42 मिलकर 90 हो रहे हैं, और 23 और 67 मिलके हो रहे हैं 90। तो हम सबसे पहले इनको बगल बगल लिख लेते हैं। tan 48, tan 42, tan 23, tan 67 डिग्री। अब हमने जो पूरक कोणों के फॉर्मूले पढ़े हैं, हम उसके आधार पे किसी एक को बदलेंगे, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। तो मान लीजिए हमने tan 48 को ऐसे ही रखा, हम 42 को लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो 42 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48, क्योंकि 48 और 42 दोनों का योग 90 था। इसी तरह tan 23 को हम ऐसे रख रहे हैं, और tan 67 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23। तो अब tan 48 तो ऐसे ही रहा, tan 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे। tan 90 माइनस a होता है cot a, यहाँ पर a की जगह क्या है 48, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, ये हो गया cot 48। tan 23 एज इट इज लिख लिया, और tan 90 माइनस 23 हो जाएगा cot 23। अब हम आए आगे, tan 48, cot 48 को tan के रूप में हम लिखना चाहते हैं, तो cot tan का व्युत्क्रम होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/tan 48। tan 23, और फिर से cot को हम tan में लिखना चाह रहे हैं, तो 1/tan 23। अब ये tan 48 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में है, ये दोनों कट गए, सो हमें मिला 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि उत्तर आ गया A। इस तरह से हम पूरक कोणों पर अगर कोई सवाल दिया होगा तो इन फॉर्मूला का यूज करके हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आइए अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका एक ऐसा समीकरण है जिसमें जो उसमें चर हैं उनके कोई भी मान रखे जाएं, वो सभी मानों के लिए सत्य होती है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेकर समीकरण बने हुए होंगे। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। क्यों? क्योंकि हम कोण A के सापेक्ष अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो जैसा हम देखते हैं पाइथागोरस की थ्योरम से, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ AC स्क्वायर से यानी कर्ण से भाग कर दें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, ये हो गया 1
और ये है BC बटे AC का होल स्क्वायर और ये है AB बटे AC का होल स्क्वायर। जरा सा आप चित्र को देखें और बताएं BC बटे AC क्या होगा। BC बटे AC यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगा साइन A और इस पर स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A। AB बटे AC, AB बटे AC यानी आधार बटे कर्ण क्या होगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर A। ये हमारी हो गई पहली सर्वसमीका। जैसे हमने पहले AC स्क्वायर से कर्ण से दोनों साइड भाग किया है तो हमें ये सर्वसमीका मिली। इसी तरह अगर 1 by 1 पहले हम BC स्क्वायर से भाग करेंगे दोनों तरफ, फिर हमें एक सर्वसमीका मिलेगी और जब हम AB स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करेंगे तो हमें तीसरी सर्वसमीका मिलेगी। तो तीन सर्वसमीकाएं होती हैं। पहली है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1। दूसरी हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू sec स्क्वायर A एंड तीसरी है 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल्स टू cosec स्क्वायर A। अगर हमें कभी cos स्क्वायर A की जरूरत होगी तो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A। मींस इनको हम किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन मुख्य सर्वसमीकाएं हैं और इनका फायदा ये है कि हम किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से इनके प्रयोग से निकाल सकते हैं। तो इस पर हम एक प्रश्न करके देखते हैं। हमें ये प्रश्न दिया गया है, सिद्ध करिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ऐसे सवालों में क्योंकि बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है तो एक बायां पक्ष हो गया और दाहिनी साइड का हो गया दायां पक्ष। तो हम बाएं पक्ष से स्टार्ट करते जाएंगे और दायां पक्ष ले आएंगे। किसी किसी सवाल में हम दाएं पक्ष से स्टार्ट कर लेते हैं और बायां पक्ष ले आकर सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बाएं पक्ष से स्टार्ट कर रहे हैं। बायां पक्ष क्या दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो हर में डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है व्यंजक उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दिया जाए। कॉन्जुगेट का मतलब है अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन कर दिया जाए और अगर यहाँ माइनस का होता तो हम यहाँ प्लस का साइन ले लेते और ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दिया गया। गुणा करने पर हम देखते हैं ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और नीचे क्या है ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी के रूप का आ गया। यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों छोड़ रहे हैं क्योंकि हम प्रूफ क्या करना है वो भी देखते चलते हैं। यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है और नीचे देखते हैं तो नीचे बचा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से अगर सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कॉस स्क्वायर को उधर ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और इस पर भी स्क्वायर आ गया है, इस पर भी स्क्वायर आ चुका है। हम चाहें तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं यानी जो स्क्वायर का साइन है दोनों के ऊपर लगा लें। अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे यानी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। देखते हैं 1 बटे साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। सो ब्रैकेट के अंदर आया कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा और इन पर है होल स्क्वायर।
हमें यही प्रूफ करना था, तो हम प्रूफ करके दाहिना पक्ष यानी राइट हैंड साइड ले आए। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुए थे और राइट हैंड साइड अपने आप प्रूफ हो गया। सो इस प्रकार से हमारी जो हमें प्रूफ करने को दिया गया था वो प्रूफ हो गया। इति सिद्धम या हेंस प्रूफ्ड। अब ये पूरा चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया है तो इस पर ये अभ्यास कार्य है। यदि sin a बराबर 3/4 तो आप cos a और tan a का मान निकालें। दूसरा प्रश्न cos 48 माइनस sin 42 का मान निकालिए। और तीसरा sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान बताइए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं वंदना वर्मा, प्रवक्ता नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, आज कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 4 सारणिक के प्रथम भाग को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि आपने जो पिछला पाठ आव्यूह पढ़ा है उसको आप बहुत अच्छे से अभ्यास करिए, उसको अच्छे से समझें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये इस पाठ सारणिक को समझने में सरलता होगी। और यदि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हम देखें बच्चों, तो ये दोनों ही अध्याय आव्यूह व सारणिक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष इन अध्यायों से एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चों, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, तो आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज हमारे चर्चा के विषय या शिक्षण बिंदु क्या है। हमारे चर्चा के विषय है, सर्वप्रथम हम करेंगे आव्यूह का पुनरावलोकन, यानी कि जिस पाठ को आव्यूह को आप पढ़ चुके हैं उसमें आपने क्या क्या पढ़ा और उसको हम कैसे सारणिक से रिलेट करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सारणिक की परिभाषा व सारणिक के अवयवों का उपसारणिक व सहखंड ज्ञात करना सीखेंगे। उसके बाद हम भिन्न कोटि के सारणिक एवं उनका प्रसार सीखेंगे और अंत में अभ्यास के प्रश्नों को समझेंगे और हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं आव्यूह के पुनरावलोकन यानी कि हम आव्यूह की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो बच्चों, आपने पिछले पाठ आव्यूह में आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह, विभिन्न प्रकार के आव्यूह को पढ़ा, आपने आव्यूह के बीजगणित को जाना, आपने आव्यूह पर होने वाली प्रारंभिक संक्रियाओं को समझा तथा आव्यूह उन प्रारंभिक संक्रियाओं का अनुप्रयोग कर किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना जाना। बच्चों, आपने यह भी जाना कि हम किसी भी रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए एक रैखिक समीकरण निकाय लेते हैं। यहाँ पे हमने एक दो चरों का रैखिक समीकरण निकाय लिया है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यदि हमें इसको आव्यूह रूप में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे ax बराबर b। यहाँ पे a एक वर्ग आव्यूह है जिसके की अवयव x व y के गुणांक हैं, a1 b1 a2 b2। x आव्यूह में चरांक x और y लिए गए हैं तथा b आव्यूह के अवयव अचर पद c1 व c2 है। अब बच्चों, थोड़ा सा हम कक्षा 10 की तरफ आते हैं। कक्षा 10 में आपने जो पढ़ा मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी। हमने कक्षा 10 में पढ़ा था कि यदि एक रैखिक समीकरण निकाय दो चरों वाला आपको दिया है, जैसा कि यहाँ पे दिया है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो आपने पढ़ा था कि इस रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होंगे यदि
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और इसको हम थोड़ा और हल करें तो हम इसको लिख सकते हैं A1 B2 नॉट इक्वल टू A2 B1, और ये हमें मिलता है A1 B2 माइनस A2 B1 नॉट इक्वल टू 0। ये स्थिति कब थी बच्चों? जब इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। हम लोगों ने एक और कंडीशन पढ़ी थी कि इसी रैखिक समीकरण निकाय का अनेक हल भी हो सकता है और कोई हल नहीं होगा यदि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा। अनेक हल व कोई हल नहीं होगा यदि A1 अपॉन B1 A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, और इसको भी हल करेंगे तो हमें मिलेगा A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं दोनों ही स्थितियों में हमें एक संख्या ज्ञात हो रही है, क्या A1 B2 माइनस A2 B1 तथा A1 B2 माइनस A2 B1। तो आप देख रहे हैं यह संख्या ही निर्धारित करती है कि इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा अथवा नहीं होगा। तो ये जो संख्या हमने ज्ञात करी A1 B2 माइनस A21, इसी को हम आव्यूह A का सारणिक कहते हैं। जैसा कि लिखा है, इन समीकरणों के निकाय का हल अद्वितीय है अथवा नहीं, इसको संख्या A1 B2 माइनस A2 B1 द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसे आव्यूह A का सारणिक कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम सारणिक की परिभाषा। सारणिक की परिभाषा क्या है बच्चों? आपने वर्ग आव्यूह पढ़ा है, तो सर्वप्रथम तो हम सिर्फ वर्ग आव्यूह का ही सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हमें जब सारणिक लेना है तो हम किसका लेंगे? वर्ग आव्यूह का। तो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वर्ग आव्यूह A, यहाँ पे एक A वर्ग आव्यूह लिया है जिसकी की कोटि n है तथा Aij उसका एक अवयव है, अर्थात IV पंक्ति व JV पंक्ति में स्थित यह अवयव है। तब उसके संगत एक संख्या का अस्तित्व होता है जो कि, और वह संख्या वास्तविक भी हो सकती है या सम्मिश्र भी हो सकती है, और इसी संख्या को हम आव्यूह A का सारणिक कहते हैं। इसे हम ये जब हम बच्चों आप A पढ़ते थे, आपने आव्यूह पाठ में पढ़ा है, जब हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से हम किसको प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं? आव्यूह को। जब हम इस अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर को हम दो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइंस के बीच लिख देते हैं, तब ये कहलाता है सारणिक A और या डेट A। अब सारणिक को इंग्लिश में जो टर्म दिया गया है वह है डिटर्मिनेंट, और इसी के प्रथम तीन अक्षरों को लेकर यह निरूपण किया है डेट A, या इसे ग्रीक अक्षर रियल्टा से भी निरूपित किया जाता है। अब बच्चों दो महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बताना चाहूंगी। पहली चीज तो आप इसको मापांक बिल्कुल नहीं बोलेंगे और ना ही इसको मापांक की तरह हल करेंगे, क्योंकि मापांक जब हम किसी संख्या का निकालते हैं तो वह मापांक या निरपेक्ष मान जब हम किसी संख्या का निकालते हैं तो वह सदैव धनात्मक होता है, जबकि किसी आव्यूह का सारणिक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो पहली तो गलती आप लोग ये बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इसको मापांक बिल्कुल नहीं कहेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सारणिक A। और दूसरी चीज आपको मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ, प्रारंभ में ही सारणिक की परिभाषा बता चुकी हूँ कि सारणिक हमेशा सदैव हम वर्ग आव्यूह का ही ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब उदाहरण लेते हैं।
उदाहरण में पहले मैं आपको एक कोटि के अवयव का सारणिक बताती हूँ। मान लीजिए हमने एक ए सारणिक लिया, ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे A11, ये प्रथम कोटि का सारणिक है। एक द्वितीय कोटि का सारणिक भी ले लेते हैं, मैं आपको व्यापक रूप में बता रही हूँ। इसको लिखेंगे A11, A12, A21, A22। इसी प्रकार से हम तृतीय कोटि का भी सारणिक ले सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और यह आप अवयव में पढ़ ही चुके हैं। A11 अर्थात प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव, जैसे A22 द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ का अवयव, तो ये उसी प्रकार से लिखा गया है। बच्चों, इस वैसे हम चतुर्थ कोटि पंचम कोटि के भी सारणिक लिख सकते हैं, परंतु इस अध्याय में हम तृतीय कोटि तक के अवयव तक ही सीमित रहेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। अब आता है इनका मान कैसे। अब बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने इस परिभाषा में लिखा है कि प्रत्येक वर्ग अवयव A, जहां n अवयव की कोटि है और Aij उसका अवयव है, के संगत एक संख्या है। पर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि ये तो सारणिक के अंदर लिखे हैं अवयव। तो आपको मैं प्रथम और द्वितीय को बताती हूँ कैसे। जब हम प्रथम कोटि के सारणिक को लिखेंगे तो उसका मान स्वयं वही अवयव होता है, यानी कि इसका जो सारणिक होगा वो होगा A11। ऐसा प्रथम कोटि में होता है, क्योंकि प्रथम कोटि के सारणिक में सिर्फ एक अवयव होता है, इसलिए वह स्वयं ही उसका सारणिक कहलाता है। तो आपको एक संख्या मिल गई यहाँ पे। इसी प्रकार से द्वितीय कोटि में देखें। अब द्वितीय कोटि के सारणिक को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसमें हम देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें अगर हम इसको एक वर्ग माने तो एक विकर्ण हम इस प्रकार से खींच सकते हैं। तो पहले विकर्ण के सापेक्ष जो अवयव पढ़ रहे हैं, जो अवयव हैं, इनका गुणा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, A11, A22, फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसके बाद द्वितीय विकर्ण के सापेक्ष जो अवयव पढ़ रहे हैं इनको गुणा करके लिखेंगे A12, A21। तो यहाँ पे भी हमको एक संख्या प्राप्त हो गई जो कि ये सारणिक का मान कहलाएगा। अब तृतीय सारणिक को भी हम हल करेंगे, लेकिन बच्चों इसको हम विस्तृत रूप में आगे पढ़ेंगे। अभी चूंकि हमें जो आगे पढ़ना है उसमें आपको द्वितीय और प्रथम कोटि के सारणिकों के मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम उसका अनुप्रयोग करेंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं सारणिकों के अवयव का उपसारणिक ज्ञात करना। क्या है परिभाषा? सारणिक के अवयव Aij यानी आईवी पंक्ति व जेवे स्तंभ का अवयव का उपसारणिक एक सारणिक ही होता है जो आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ जिसमें कि वह स्थित है उसको हटाने से प्राप्त होता है। और अवयव Ij के सारणिक के उपसारणिक को हम Mij द्वारा व्यक्त करते हैं। उपसारणिक को हम माइनर भी बोलते हैं और इसीलिए इसको ये माइनर बोलते हैं, इसलिए इसको कैपिटल Mij से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं फिर आपको एक व्यापक द्वितीय कोटि का एक सारणिक लेके आपको उदाहरण बताती हूँ। A11, A12, A21, A22। तो यदि हमें इसके सारणिक मान लीजिए, इसमें देखिए सबसे पहली चीज तो हम उप सारणिक जब ज्ञात करते हैं तो प्रत्येक अवयव का उप सारणिक हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमको M11 निकालना है, यानी कि ये किसका उप सारणिक है, ये A11 अवयव का उप सारणिक है। तो हमने परिभाषा में क्या पढ़ा कि यदि हमें Mij निकालना है तो हमें आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटा के और बाकी जो बचेगा, तो अब चूंकि ये A11 यानी प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हटाएंगे बच्चों, अगर ये हम प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हटाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, A22। अतः
A11 का जो उप सारणिक है वह है A22। इसी प्रकार से हम M12 भी ले सकते हैं। M12 में आप क्या करेंगे, यानी प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को हटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ ये हटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, A21। इसी तरह M21 अर्थात प्रथम पंक्ति अर्थात द्वितीय पंक्ति एवं प्रथम स्तंभ को हटाने से हमको प्राप्त होगा A12। और इसी प्रकार से M22 कैसे ज्ञात करेंगे, द्वितीय पंक्ति एवं द्वितीय स्तंभ को हटाने से हमें प्राप्त होगा A11। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम प्रत्येक अवयव का सारणिक उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चर्चा पे बिंदु पे हम चर्चा करते हैं कि देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो सारणिक था ये कितनी कोटि का था, ये द्वितीय कोटि का सारणिक था, परंतु जो हमने उप सारणिक ज्ञात किया वो कितनी कोटि का है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि सारणिक के अवयव Aij का उप सारणिक एक सारणिक होता है। तो ये अगर हम इसको सारणिक रूप में ऐसे लिख दें तो आपने इसकी पिछली वाली स्लाइड में आपको मैंने बताया है कि प्रथम कोटि के सारणिक का जो मान होता है वह स्वयं वही अवयव होता है, तो ये A22 के बराबर होगा। ये थोड़ा और मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। इसको भी अगर हम सारणिक में लिख दें तो ये A21 होगा, इसको भी हम सारणिक में लिख दें तो ये A12 होगा, और इसको सारणिक में लिख दें तो ये हमारा A11 होगा। ठीक है, तो आपने ये देखा कि यदि इस सारणिक की कोटि ये कितनी कोटि का था, द्वितीय कोटि का था, परंतु हमने जो उप सारणिक ज्ञात करे वे कितनी कोटि के आए, ये चारों उप सारणिक हमें कितनी कोटि के प्राप्त हुए, 1। तो यदि कोई सारणिक n कोटि का है, यहाँ पे एक कंडीशन और लग रही है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। n कोटि का है तब उसके अवयवों के सारणिक n-1 कोटि के होंगे, ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या निकाला, उप सारणिक। इसके बाद हम देखते हैं सहखंड। सहखंड जब आप उप सारणिक निकालना सीख जाएंगे यदि, तो आप सहखंड को बहुत सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं सहखंड की परिभाषा। सहखंड के लिए जो इंग्लिश टर्म यूज होता है वह है कोफैक्टर। ठीक है, तो सारणिक के अवयव Aij का सहखंड Aij द्वारा व्यक्त करते हैं। अब हम सहखंड को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Aij से, और Aij बराबर होता है -1 i + j Mij। अब इसमें Aij जहाँ पे Mij क्या है, ये Aij का एक उप सारणिक है। अब इसको मैं एक उदाहरण से बताती हूँ आपको। सबसे पहले उदाहरण लेने से पहले आपको ये जो चीज है इसके बारे में बताते हैं। यहाँ लिखा है -1 की पावर i + j, अर्थात जिस भी अवयव का हम सहखंड ज्ञात कर रहे हैं वह जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में स्थित है हम उसका योग करेंगे, या हम कहें उसके अनुलग्नों का योग करेंगे और उसको घात में लिखेंगे। और सरलता से समझें तो यदि यह i + j यदि एक सम संख्या आती है तो हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। i + j अगर एक सम संख्या आई है तो जानते हैं -1 की अगर घात कोई सम संख्या होगी तो हम क्या लिखेंगे, उसको +1 लिखेंगे, तो चिन्ह हम कौन सा लगाएंगे, प्लस। और यदि i + j कोई विषम संख्या आती है तब हम इसमें चिन्ह लगाएंगे माइनस का। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए लेते हैं, अगर हमने A11 एक अवयव लिया
और इसका हमें क्या निकालना है, सहखंड निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से, इसके तो इसमें i हमारा होगा 1 और j भी 1 होगा, तब हम -1 की पावर 1 + 1 यानी 2 सम संख्या है, तो ये निशान कौन सा, इसमें चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा यानी +1। ठीक है, तो अब ये देखते हैं निकालना। अब मैं आपको एक उदाहरण लेती हूँ तृतीय कोटि के सारणिक का। ये एक हमने एक सारणिक लिया तृतीय कोटि का। हम लेते हैं 2 -1 0 1 2 1 3 -2 और 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक तो बच्चों ये जो हम ये यहाँ पे ये माइनस का ये दरअसल ये हमें ये निर्धारित करता है कि हमें कौन सा चिन्ह लेना, ये आपको बता चुके हैं। आपको एक और तरीका बताते हैं जो कि तृतीय कोटि के लिए आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए आपको एक कोई तृतीय कोटि का आव्यूह का सारणिक दिया है, आव्यूह है, चलिए ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके जो विकर्ण वाले भाग होते हैं वहां पे प्लस का चिन्ह आता है, यानी कि एक विकर्ण ये होता है और ये दूसरा विकर्ण होता है, यहाँ भी कौन सा चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह आता है, और बाकी सभी स्थानों पे क्या होता है, माइनस के चिन्ह आते हैं। और अगर आप इससे भी इसकी तुलना करके देखें या इस प्रकार से निकाल के देखें तो देखिए ये वाली स्थिति क्या होती है, 1 1 स्थिति होती है, यानी 1 + 1 की स्थिति होती है, यानी 1 + 1 2 होता है, तो प्लस का हो गया। यहाँ पे A21 2 + 1 क्या होता है 3, यानी विषम संख्या आई, इसलिए माइनस का चिन्ह आया। अब देखिए इसका हम निकालते हैं। मान लीजिए हमें इसमें निकालना है, पहले हम इसमें हमें सहखंड निकालना है A21 का, यानी कि A21 का सहखंड किस प्रकार से हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैपिटल A21। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको काट देते हैं, -1 पावर 2 + 1 और MIJ बच्चों क्या था, उप सारणिक था, किसका, अवयव A21 का। तो सबसे पहले हम देखते हैं A21 यानी कि द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ, यानी कि ये हमारा A21 अवयव है बच्चों। हमें इसी का सहखंड ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1 2 + 1, आप देख रहे हैं विषम संख्या है, तो हम यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे। और उपसारणिक कैसे निकालते हैं, आप ये द्वितीय पंक्ति हम हटा देंगे और प्रथम स्तंभ हटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -1 0 -2 4। और इसको आपको मैंने हल करना बताया है, कैसे हल करेंगे, पहले इस विकर्ण के सापेक्ष, यानी -1 × 4 -4 होगा, और -0 × -2 कितना हो जाएगा, 0, और इसको हल करेंगे -× -4, ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए एक और निकालते हैं। अब हम निकालते हैं A31, यानी कि अवयव A31 का सहखंड। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, A31 से। यही फॉर्मूला फिर से लगेगा, तो आप इसको लिखेंगे। अब आप चाहे तो -1 की पावर i + j ना लिख के आप सीधे यहीं पे योग करिए। 3 + 1 क्या होता है 4, 3 + 1 होता है 4, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। और यहाँ पे तीसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ इसको करेंगे तो आएगा -1 0 2 1, और इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा आएगा -1 -0, ये आ गया हमारा -1। अब हम पढ़ेंगे भिन्न कोटि के सारणिक एवं उनका प्रसार। तो बच्चों एक कोटि के आव्यूह के सारणिक का प्रसार मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हम कैसे करते हैं, A = A11 यदि लिखा है तो वह अवयव स्वयं ही उसका मान होता है। द्वितीय कोटि के आव्यूह के सारणिक का प्रसार भी आपको एक बार बता ही चुके हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, A11 A22 माइनस, और अगर ऐसे गुणा करें तो -A21 A12। और यदि हम इसमें सहखंड का उपयोग करें तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप बच्चों इसको हल करके प्रयास करिएगा, आपको यही मान यहाँ पे प्राप्त होगा।
इसके बाद हम आते हैं तृतीय कोटि के अवयव के सारणिक पे। तो तृतीय कोटि के अवयव के सारणिक में भी हम वही करेंगे, A11 और कैपिटल A11 अर्थात प्लस A12 कैपिटल A12। इसको यदि हम समराइज करें या संक्षेप में बोलें तो हम प्रसार कैसे करते हैं कि किसी भी सारणिक के किसी अवयव को जब हम उसी के कोफैक्टर से यानी कि सहखंड से गुणा करके और योग करते हैं तो हमें वह प्रसार मिलता है। परंतु इसके विपरीत यदि हम किसी अन्य पंक्ति और किसी अन्य स्तंभ के सहखंडों से गुणा करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो 0 मिलता है। अब बच्चों पहले हम इस प्रसार की बात करते हैं तो ये आपको समझ में आया गया। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों को जब उन्हीं के सहखंडों से गुणा करके योग करा जाए तो वह सारणिक का प्रसार होता है। यहाँ यह प्रसार पहली पंक्ति के सापेक्ष किया गया है, परंतु हम इसको किसी भी पंक्ति और किसी भी अवयव के सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हैं। और यदि हम किसी अन्य के साथ करें, जैसे A11 को यदि मैं द्वितीय पंक्ति के सहखंडों के साथ करूं तो A21 प्लस A12 को यदि करें A22 प्लस A13 को यदि करें A23 के साथ तो हमें ये जो रिजल्ट मिलता है ये 0 मिलता है। समझ गए आप? इसी प्रकार से यदि हम तृतीय पंक्ति के साथ करें इन्हीं के अवयवों को तो भी हमें 0 मिलेगा, या प्रथम स्तंभ को हम अन्य 2 स्तंभों के सहखंडों के साथ करें तो भी हमें 0 प्राप्त होगा। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें सारणी का मान ज्ञात करना है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइन थीटा ये पहले हम इस विकर्ण के अनुरूप करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा और फिर इन दोनों को गुणा करेंगे इस विकर्ण के सापेक्ष तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि हमें रिजल्ट देगा। ये आपने कक्षा 10 में पढ़ी है एक सर्वसमीका जो कि किसके बराबर होती है 1 के। चलिए अब देखते हैं गृह कार्य बच्चों। ये सारणिक के मान आप ज्ञात करेंगे। ये तृतीय कोटि का है, ये द्वितीय कोटि का है। इस प्रश्न को जरा सा देखिए, ये द्वितीय कोटि के दोनों सारणिक है दोनों और इसको आप हल करेंगे जैसे आप प्रसार करते हैं उसी प्रकार से इसको करेंगे। यहाँ भी आपको उसी प्रकार से करेंगे, तब यह आपको एक द्विघातीय समीकरण मिलेगा और आप जब उसको हल करेंगे तो आपको x के 2 मान प्राप्त होंगे। और आप इसको अच्छे से अभ्यास करिएगा जिससे कि आपको आगे के जो सारणिक के भाग हैं उनको समझने में सरलता होगी।